नाउ हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पढ़ा, हम लोगों ने डिग्री पढ़ा, हम लोगों ने देन टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा. वी रेड दैट द पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड into monomial, binomial, trinomial, biquadratic. All this biquadratic was a degree. So we learned about these things. We learned about these things in the polynomial. Then what happened? Then what happened? Okay. Then what happened was, uh, we also learned about different things. We learned about different things like factor theorem, remainder theorem. We learned about different things like factor theorem, remainder theorem, and we learned about the division algorithm also. We learned, we solved many questions according to that. And now your task is to solve more and more questions, because it is not humanly possible for any teacher to solve 100 questions in the class. That's not possible. Even if I have to complete whole only one chapter in the whole session, in one chapter in 1 month, then also I won't be able to complete whole of the this uh, all the questions in the class, because that would be like just feeding you. I don't want to feed you. I don't want to feed you with the solutions. I want you to I want you to fight for the solution. लड़ो तो सही, सवाल क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं? सवाल सॉल्व होने चाहिए. I told you guys yesterday also in mental ability class. सवाल सॉल्व होने चाहिए. क्यों नहीं हो रहे? नहीं नहीं सॉल्व होते हैं तब तक एकदम उसके पीछे पड़े रहो, हाथ पैर मुंह धो के पीछे पड़ जा रहे, कैसे नहीं सॉल्व होगा. छोड़ना नहीं है जब तक सवाल पूरा ना हो जाए. चलो, anyways, so now coming back to the second topic of the day, second topic of this chapter, which is called as algebraic identity. सर, ये आइडेंटिटी क्या होता है? बहुत बार ये वर्ड सुना है, सेवेंथ स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हैं. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी. बेटा, आइडेंटिटी वो पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन होता है. नाउ हियर वी हैव समथिंग इज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड and something is written in right hand side. So this left hand side is equal to right hand side for all the values of a and b. This left hand side is equal to right hand side for all the values of a and b. This is called as identity. If I'm having three variables, so the left hand side will be equal to right hand side for all the values of a, b and c. This is what is the meaning of an identity. तो आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है कि ये रियल नंबर के लिए वैलिड है, ये इरेशनल नंबर के लिए वैलिड है, ये रैशनल नंबर के लिए वैलिड है. नो, नथिंग लाइक दैट. इट विल बी वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी. दिस इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम लोग बचपन में पढ़कर आए हुए हैं. नाउ हियर यू कैन सी देयर आर टू टेबल्स. One is the table of important identity, another is the table of value form. I won't be telling you the value form. I won't tell you the value form because मेरे को ये value form मुझे खुद नहीं समझ में आता है. But yes, I will give you how to arrive at these value forms. मैंने आज तक इन value forms को याद नहीं किया है. मुझे जो भी requirement होती है, that I derive myself then and there. अब देखो भाई, पहली आइडेंटिटी जो अपन ने बचपन में पढ़ी थी, वो ये पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. यहां से आई कैन ऑल्सो डिराइव वन आइडेंटिटी एंड दैट आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ये कैसा है सर? सर, ये ऐसे आया कि जो प्लस 2ab है ना यहाँ पे,
जब ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये -2ab बन जाएगा। ये जो +2ab है सर, जब ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये -2ab बन जाएगा। तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 a स्क्वायर + 2b a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर -2ab। दैट्स इट। सिमिलरली सर, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। इफ आई टेक x, a इज इक्वल टू x and b is equal to 1 by x, then I will have x square plus 1 upon x square is equal to x plus 1 by x का whole square minus 2 multiplied by x multiplied by 1 by x, which is equal to x plus 1 by x का whole square minus of 2. This is a very important concept that is being asked. अब इन कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फॉर्मूले में आपको रटवाया नहीं जा सकता। दैट इज ए थिंग। तो जब भी आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखो या आप x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर देखो, आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि इधर इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बत्ती आपके दिमाग में अपने आप जलनी चाहिए। इन फॉर्मूलों को जितना याद करोगे, जितना अपने दिमाग पे जोर दोगे, उतना ही कंफ्यूज होगे। तो बेटा, फॉर मी दिस होल वैल्यू फॉर्म इज बेसलेस, इट हैज नो मीनिंग। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट देन इट हैज नो मीनिंग। हाँ, नहीं समझ में आया है, रट्टू तोता हो, तब आप इसे याद करो। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम ये होगी, 11 यहाँ 9 यहाँ, तो 11 और 9 टोटल 20 फॉर्मूले। ओ माय गॉड, मैं तो नहीं याद कर सकता 20 फॉर्मूले। अगर आप लोग याद कर सकते हो तो यू आर टू गुड, बट what I will suggest you, understand these things, apply these things. चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं। So first identity that I had was a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. On the basis of this, I had another identity a minus b whole square that was equal to a square minus 2ab plus b square. Then I had a square minus b square, which is equal to a plus b multiplied by a minus b. Then I had a plus b plus c whole square. Now this a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. इसका डेरिवेशन क्या होता है, चलो देख लो। हमें ये पता है, हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसे x मान लो और इसे y मान लो। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट x प्लस वाई होल स्क्वायर। सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2xy plus y square. Now when I will put the values, this will be equal to a plus b whole square plus 2 times of a और b की वैल्यू रख, x और y की वैल्यू रख दी, 2 times of a plus b multiplied by c plus c square। ठीक, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस लास्ट में आ गया c स्क्वायर। सो फाइनली माय वैल्यू इज दिस वन। कुछ करना नहीं था, दिस इज हाउ द identity was derived. So this will be equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2bc plus 2ca हो गया। Next identity that I have is a cube plus b cube.
A cube plus B cube is nothing but A plus B multiplied by A square minus AB plus B square. कैसे आता है? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, देखो समझाता हूं कैसे आता है। कैसे आया? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट ए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अपन सबसे पहले यहाँ से करते हैं। A plus B whole cube is A cube plus B cube plus 3AB multiplied by A plus B. A minus B whole cube will be A cube minus B cube minus 3AB multiplied by A minus B. ठीक है, ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं। एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, A क्यूब प्लस B क्यूब मिल जाएगा और A क्यूब माइनस B क्यूब मिल जाएगा। या एक, अब ये तो हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का एक फॉर्म और होता है, इट कैन बी रिटन एज A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B होल स्क्वायर, A plus B whole square and minus of 3AB. This can also be written as A plus B whole square minus of 3AB. क्या किया मैंने? देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। I will tell you what I did. देखो ये फॉर्मूला था ना, A क्यूब A plus B whole cube is equal to A क्यूब plus B क्यूब minus 3AB into A plus B। इसको मैं इस तरफ लेकर गया, प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी को मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। सबसे पहले तो बेटा ए प्लस बी को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। अब देखो ये क्या बनता है, दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही तो आया था फॉर्मूला, यही तो आया था फॉर्मूला। फॉर्मूले कुछ नहीं होते हैं, बस इधर उधर थोड़ा बहुत मैन्युपुलेशन करना पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूले मत याद करना, फॉर्मूले याद करोगे बहुत परेशान होगे। फॉर्मूले मत याद करना, टीचर की ये बात याद रखना। फॉर्मूले याद करने में लग गए बेटा, इतना परेशान होगे, इतना परेशान होगे कि परेशान हो जाओगे। ठीक, चलो। सिमिलरली आई विल गेट दिस फॉर्मूला, a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab multiplied by a minus b। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस a minus b multiplied by a square plus ab plus b square। ठीक, लास्ट फॉर्मूला ऑफ द डे, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। दिस फॉर्मूला इज very 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 important। a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ठीक, जितना बड़ा फॉर्मूला है उतने ही बड़े उतने ही ज्यादा इसके एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट केस यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी को मैंने 0 कर दिया, उस केस में क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड इज, राइट हैंड साइड इज 0, देन आई विल हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब is equal to 3 times of ABC। This is what was the formula. This is what was the formula. These are what are the applications of the formula. Now let us move to the application of the formula। चलो भाई फॉर्मूलों का एप्लीकेशन सीखा जाए। किसी को कोई डाउट है भाई, समस्या है एप्लीकेशंस में, फॉर्मूलों में किसी को कोई समस्या है? से यस नो सर। नो सर। चलो भाई, चलो हाँ बोलिए। सर आपने जो उधर लिखा है, सर जो आपने उधर लिखा था सर, वो आप वापस समझा सकते, बस एंडिंग का पोर्शन। क्या मतलब, मैं समझा नहीं सर। आपने जो उसमें लिखा था ए क्यूब, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab,
इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। सर आप आगे वो आगे वाला समझा सकते हैं उसका बेटा मैं बोल डेरिवेशन? रहा हूँ कि अगर इसका एक स्पेशल केस होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई बेटा, तो मेरा जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगा। इफ माई राइट हैंड साइड बिकम्स 0, देन माई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। राइट हैंड साइड 0 हो गया तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स मी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ abc। खत्म, यही तो था। ठीक है, धैर्य, इज इट ओके? यस सर, यस सर, ओके, यस सर, इट्स ओके। थैंक यू। चलो नेक्स्ट इज x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a। ये कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ ये चीजें हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। वी विल स्टडी दिस एट ए वी विल फाइंड इट्स एप्लीकेशन at a later part. Okay, so just note down it, then I'll move further. I hope you guys have noted down. Let us move further. Question. Sir, 2 minutes. क्या बोल रहे हो? Sir, 2 minutes. Can you do once more? Let's know. Yeah. Yes, sir, done. Okay. Thank you, sir. It's okay. Questions. The most important part of our learning is solving the questions. तो जो पहला प्रश्न है आपके सामने वो ये है, in the rest of the class I will be solving the questions. Now one more thing, my dear friends. Please solve this question, बच्चा. Question number 1. It has application of exponents also. It has application of identities also that we have learned. चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ, बाकी के सवालों में तो ऑब्वियस सी बात है यू गाइस हैव टू हेल्प मी आउट। देखो हमने क्या सीखा था कि अगर a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n है, I can write it as a raised to the power m minus n। ये बात हम लोगों ने सीखी थी। So this can be written as x to the power a minus b multiplied by a square plus ab plus b square multiplied by x to the power b minus c multiplied by b square plus bc plus c square multiplied by x to the power c minus a multiplied by c square plus ac plus a square। ठीक, अब अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a minus b multiplied by a square plus ab plus b square. This is a cube minus b cube. So this will be x to the power a cube minus b cube multiplied by x to the power b cube minus c cube multiplied by x to the power c cube minus a cube। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब which is equal to x to the power 0
which is equal to 1. LHS is equal to RHS, hence proved. So this is how the question is to be solved. I hope you guys understood the question. Let us now move to the next question. ये previous question समझ में आ गया था भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक चलो. Calculate next question. Part first, part second, part third, part fourth. चलिए कीजिए. 4 questions, 4 minutes. Your time starts now. The answer 2x minus 1 upon 3x whole square. सर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो बेसिकली मुझे a minus b whole square दिया हुआ है, which is equal to a square minus 2ab plus b square. Putting the values, what I will have 2x whole square minus 2 into 2x multiplied by 1 upon 3x 1 upon 3x plus minus 1 upon 3x plus 1 upon 3x whole square. Finally what I will have, ये 2 से 2 x से x cancel हो गया, so it will be 4x square plus 1 upon 9x square minus 4 by 3. I hope this is the answer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई किसी के माइक में बहुत प्रॉब्लम है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक. Somebody's mic has lot of issues, huh? So this would be the answer that you guys got. Next. Sir, I solved all the questions from the second slide. Very good, very good. Now see this question. Now see this question. यहाँ पे भी वही सेम चीज भाई 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x square multiplied by 5y. So this will be nothing but 9x raised to the power 4 plus 25y square plus 2 into 3 is 6. 6 into 3 is 30. 6 into 5 is 30. 30 into x square into y. I hope you guys got this answer. Yes, sir. Chalo, next. Yes, sir. Root 2x minus 3y multiplied by root 2x plus 3y. This is nothing but a plus b multiplied by a minus b, which is equal to 2x square minus 9y एक मिनट a square minus b square. So this will be root 2x का whole square minus of 3y का whole square, which is equal to 2x square minus 9y square. I hope यही किया होगा आप लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. Good, sir. Thank you. Next question. A x plus y plus z का होल स्क्वायर है, ये कैसे करेंगे? देखो एक बात याद रखना, मैंने आप लोगों को दो चीजें इस फॉर्मूले में, मैंने आप लोगों को डिफरेंट वेरिएशंस नहीं बताए थे. ये जो फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने आपको डिफरेंट वेरिएशंस नहीं बताए थे. क्यों नहीं बताया था सर? ऐसे थोड़े ना होता है, आप आधी चीज़ें बताते हो आधी चीज़ें नहीं बताते हो. बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इट विल कंफ्यूज यू. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा? b की जगह जहां जहां प्लस माइनस बी, एक मिनट बेटा, जहां जहां b है वहां वहां b की जगह माइनस b पुट कर दो. आप क्या बोल रहे हो? व्हाट यू कैन राइट? sir, like to understand it we can write it as plus minus प्लस b ऑफ plus. माइनस b, प्लस ऑफ माइनस b, वही बात है.
Yes, आप sir. जहां जहां बी लिखा हुआ है बेटा वहां वहां आप माइनस बी पुट कर दो. देयर इज नो पॉइंट इन रिमेंबरिंग 3 एडिशनल फॉर्मूलाज. There is no point in remembering 3 additional formulas. That is why I have not told you this. ठीक है, तो let us move to this. इसको क्या करेंगे सर? This will be 1/4a whole square a square plus minus 1/2b whole square, that is b square, plus c square, a square plus b square plus c square, plus 2 into 1/4a minus 1/2b, 2ab plus 2bc, 2 into minus 1/2b multiplied by 1, 2ab 2bc plus 2ca, 2 into 1/4a multiplied by 1. Simplify kar lo, you will get the answer. This will be a square upon 16 plus of b square upon 4 plus of 1 प्लस क्या होगा, ये देखो कैंसिल हो गया, माइनस ए बी अपॉन 4, दिस विल बी माइनस ए बी अपॉन 4. यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बी Plus a by 2. हाँ प्लस ए बाई 2, वो तो लास्ट वाला होगा, माइनस बी प्लस ऑफ ए बाई 2. This is your formula, this is your final expression. अब इसमें मैं आपको बोलता कि put a is equal to, अब मैं आपको बोलता कि बताओ बेटा a x माइनस वाई प्लस जेड वाला क्या फॉर्मूला था, आधे बताते आधे कंफ्यूज होते, तो इससे अच्छा फायदा क्या है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, ना कि हमें फॉर्मूलों को याद करने से मतलब है. कोई मतलब नहीं है फॉर्मूलों को याद करने से, मत याद किया करो, मत याद किया करो फॉर्मूले, मैं बोल रहा हूं. हाँ ऑब्वियसली ज्योमेट्री में याद करने पड़ेंगे, ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, लेकिन एटलीस्ट अलजेब्रा में कुछ चीजें याद करनी है, बाकी चीजें नहीं याद करनी है यार. चलो, आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन विथ क्वेश्चन नंबर 3. एक बार पार्ट 3 आप लोग एक बार ट्राई कीजिए. Then I will solve this question just after 1 minute. Sir, done. Done. Very good. What you must have done is, पहले ब्रैकेट को आपने ओपन किया होगा, a plus x plus y minus 2z के होल स्क्वायर को आपने ओपन किया होगा, जो टर्म्स कैंसिल हो गए होंगे उन टर्म्स को आपने कैंसिल कर दिया होगा, एंड फाइनली यू मस्ट हैव गॉट योर आंसर. बट आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन इन सम अनदर वे. I'm not sure whether I will be able to do it or not, but let us try. Let us try. देखो, those who are still doing, उनके लिए मेथड बता देता हूँ. एक मेथड क्या है, ये this is nothing but a plus b plus c होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे उनको हटा देना, और फाइनली यू विल गेट योर आंसर. बट मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन हैव अ बेटर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. लेट अस सी हाउ. बेटा ये जो x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z है ना, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, और ये वाला जो x है इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो. तो क्या यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर. तो a प्लस b इंटू a माइनस b करो. So this will be x plus y minus 2z plus x multiplied by x plus y minus 2z minus x multiplied by, और माइनस y स्क्वायर था, माइनस 3z स्क्वायर था, प्लस 4xy था ही था, वो तो था ही था, उसको तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे हैं. सो दिस विल बी 2x plus y minus 2z multiplied by y minus 2z, और फाइनली आई एम हैविंग माइनस y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy. ठीक है, अच्छी बात है. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो. देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बन के मिलेगा मेरे को, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 2xy
अब इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे वही करेंगे जो आपने किया है। 2xy minus 4xz प्लस दिस विल बी y minus 2z का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy। अब आगे जरा इरेज कर दूं थोड़ा सा, देन लिखूंगे। पूरा इसलिए इरेज नहीं किया, नहीं तो गायब हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, अब बचा क्या देखो, अब बचा क्या मेरे पास, 2xy माइनस 4xz प्लस y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, y स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 4yz माइनस ऑफ 4yz प्लस ऑफ y स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 3z स्क्वायर और लास्ट में प्लस 4xy। अब सॉल्व कर लो, क्या बचा, दिस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज z स्क्वायर, ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, x स्क्वायर का टर्म तो पहले कैंसिल हो गया था, z स्क्वायर प्लस 6xy minus 4yz minus 4yz minus 4zx. This is my answer. See, there are different manners of solving any particular question, my dear friend. आप किसी भी सवाल को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने जब इस सवाल को देखा तो मुझे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के तरीके से एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद स्क्वायर दिखता तो फिर से मैं उसको यूज करता। जरूरी थोड़े ना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरे से नहीं होता। मैं सवाल फिर बोल रहा हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा बेटा, सवाल कोई भी टफ या आसान नहीं होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं। If you will lose in your mind, then you will lose in the exam. Trust me, before starting that question, I was not sure whether I will be able to solve this question or not. और अगर कहीं पे भी एक जगह प्लस माइनस की गलती होती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। That is why you have to be over cautious. You have to be highly concentrated while solving any question. ये नहीं कि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि मम्मी किचन में क्या बना रही है, मम्मी चाय बना रही है कि नहीं बना रही है, ये सोच रहा हूं, ये नहीं सोचना है। सवाल करने के टाइम पे सवाल के बारे में सोचना है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मुझे तो मिल गया इसका आंसर, आप लोग को मिला क्या? Sir, I also got. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। सी यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, दिस इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, सो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, so this will be 16x raised to the power 4 minus y raised to the power 4. This will be your answer. खत्म? Yes, sir. खत्म सवाल। कितना मिनट लगा भाई? Sir, less than a Next. minute. इस क्वेश्चन डाउट था हाँ बोलिए। सर, ये भी हो गया सर, बस वो पहले वाले जो हमने किया ना सर, बट अगर हम बस एक ही आइडेंटिटी से करते तो बस एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ता, एंड लाइक आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इट विल बी रॉन्ग, नॉट सेइंग इट विल बी रॉन्ग, इट जस्ट स्टक मी, इट जस्ट that feeling
just came into my mind. I asked you to solve that question. That is the basic approach जो आपने किया identity use करके. That is the basic approach. I'm not saying you that you follow this approach only. You can follow any of the approach. अगर आपके पास कोई और approach है, you are most welcome. Please tell me. It just came into my mind. I just solved it using that method. That's it. Sir, चलो we should just get the answer using any आंसर आना method. चाहिए, आंसर आना चाहिए. और कोई भी अपने मन से आइडेंटिटी मत लिख देना कि हाँ ये भी आइडेंटिटी होती है. देखो होता क्या है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो कई बार हम आइडेंटिटीज में कंफ्यूज भी हो जाते हैं. तो ऐसा कुछ मत करना कि अच्छा हाँ ये भी तो आइडेंटिटी थी. नहीं, जो आइडेंटिटी है वो है. चलो इस क्वेश्चन को देखो. दिस विल बी, हो गया सर. इन दोनों Sir, को मैं, solve. हाँ तो लेट मी सॉल्व ऑल्सो. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x². इसको मल्टीप्लाई किया x² प्लस 1/x² मल्टीप्लाइड बाई x⁴ माइनस So we प्लस just 1. have to add the radical signs of value. Yes, using the formula. Finally the answer will be x⁸ minus 1/x⁸. खत्म कहानी. That's it. चलो नेक्स्ट. हो 107 का होल स्क्वायर निकालना है, 0.94 का होल स्क्वायर निकालना है, 0.99 का होल स्क्वायर निकालना है. आई एम नॉट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. यू हैव टू यूज इट, सॉल्व इट यूजिंग द आइडेंटिटीज a plus b होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर, like this. You, if you want, you So can also, first answer got. I'm not solving it. If you want, you can also calculate it using a plus b plus c whole square. 100 plus 2 plus 4, 100 plus 4 plus 3 whole square. That also you can try. But in that way, the question will become little bit longer. So a plus b whole square se karo. Okay, now this is the question. If x square plus 1/x² is equal to 23, you have to calculate the value of x plus 1 by x, x minus Sir, 1 can by I x. add something? हाँ क्या? Sir, should we make the value of the equations a perfect square then solve? Try whatever way you have, you try. You guys have 2 minutes for this. You guys have 2 minutes for this. I will start the solution at 5:15. एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 23 दी थी. तो बेटा मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना. यहाँ से सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab. पुट x इक्वल टू 1/x. अब मुझे देखो, अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मिली हुई है. दिस स्टेप वाज डन अननेसेसरली, नॉट रिक्वायर्ड. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है ना. मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए. पुट a इज इक्वल टू x एंड b इक्वल टू 1/x. ठीक है. तो आई विल हैव x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2. Now this will be equal to 23 plus 2, which is equal to 25. So x plus 1/x will be equal to plus minus 5. It will be equal to Sir, plus but I directly added 2 from the value. So you sir, it can is okay. directly you can directly add, but when you will write it, you have to write each and everything, right? You have to write each and everything. Otherwise, it will become. हाँ बोलिए. Sir, udhar, sir, there we got the answer as 25. So, sir, why did we take the final answer as 5? We took the root. यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है बेटा. x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो x प्लस 1/x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, राइट? Yes, sir.
Now let us move to the next part. Next part is x minus 1 by x. Again, x minus 1 by x whole square is equal to x square plus 1 by x square minus 2. 2 into x into 1 by x. So this will be cancelled. So इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 23. So it will be 23 minus 2 which is equal to 21. So x minus 1 by x will be equal to plus minus square root of 21. Both the values are equally correct. No problem. Next is x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. भाई देखो x Sir. हाँ बोलिए. Sir, if we write plus root 21, it is okay now? Yes, it is okay, but if this type of question is coming, then you should write both the values, right? You should write both the values. See, different authors, some authors take the plus value as the answer. They neglect the negative values, but here we don't have any logic to neglect the negative value. तो इसीलिए आपको दोनों values लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? It will be better if you write both the values. Now Okay, next, sir. next is x square plus 1 upon x square is equal to 23. I'm squaring both the sides. So I will have x square plus 1 upon x square ka whole square is equal to 23 square. Now what it will be? X raised to the power 4 plus 1 upon x raised to the power 4 plus 2 into x square multiplied by 1 upon x square is equal to 529. So from here I am getting x raised to the power 4 plus 1 upon x raised to the power 4 is equal to 529 minus 2 is equal to 527. Khatam. The question is over. So this is what you were required to do in these questions, my dear friends. Take care. So we have completed the 60% of the topic. One last topic is left, that is factorization. Now open your books, start your exercise. Exercise number 1 में आप पहले 2 sections आप solve कर सकते हैं. In addition to that, Started and completed also. in addition to that, if you want to have perfection, then you can also solve. If you want to have perfection, then you can also solve. Solve your know yourself or solve yourself type questions also. So this was all about today. I will end your class now, and I will see you guys in the next turn. Till then, bye bye. Take care and have a nice day. Bye, sir. Okay. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Thank you.